Now, first of all, we should learn about the complex number. And the one thing in your mind, what is complex number? ये complex number है क्या? What is complex number and what is its originated? ये forming कहाँ से हुई इसकी? कैसे form हुआ? जब क्लास 9th और 10th में थे, आपने एक इक्वेशन पढ़ा था क्वाड्रेटिक में. इक्वेशन इज व्हाट? ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0. ये आपने इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है ना? क्लास में बताइए. हाँ हाँ मैम बोलिए बोलिए. Okay. We are discussing originated form of complex. Now, our quadratic equation is ax square bx plus c is equal to 0. और इसको डी मेथड से आपने सिंप्लीफाई किया था. योर डी मेथड इज व्हाट? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2. x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. This method is known as a D method. In class 10th, you have to solve. And this is known as the discriminant D, where D stand for b square minus 4ac. D stand for b square minus 4ac. And the first case applied in class 10th standard, that is what? If D is greater than 0, then you say the roots are real and distinct. On that time, you say roots are real and distinct. Clear? This is your first. Second, if D equal to 0, D equal to 0, roots are real and equal. Real and equal. This was the second. And the third case, if D less than 0, the third case is what? D is less than 0. If D less than 0, that's on that time in 10th standard, you have to write down roots are not real. Not real, that is, roots are imaginary. Okay? On that time, 10th standard, if D less than 0, what is D? D is your this one. This is less than 0. Less than 0 मतलब जो 0 से छोटा है. तो रूट के अंदर 0 छोटा, that is minus quantity, negative quantity. This is your negative quantity. On that time, the great mathematician Hamilton says this one. If D less than 0, negative quantity appear, so what to do? तो करना क्या है? तो उसने इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कशन किया. लेट दिस इज आई. बाद में इसको ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने आयोटा का नाम दिया. आई इज व्हाट? आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1. This is your I, and I is what? I is your root of minus 1. Clear? So this is I. I is equal to root of minus. What is I? I after the I known as the iota. So imagine कर दिया गया. ठीक? With the help of Hamilton. Now, if I is this number, I is equal to root of minus 1, then they discuss I square. Your I square. Your I square is what? You can say I into I. I multiply with I square root of minus 1. So I square is what? Root removing, answer is your minus 1. And after that, I cube. I square into I. Minus 1 into I, your answer is minus I. So I cube is what? I cube is minus I. I square is what? Minus 1. And later on, I raised to power 4. What is I? I know the iota I, and value of I is what? Root of minus 1. And I raised to power 4, I square multiply I square. Minus 1 multiply minus 1, answer is plus 1. So this is very good and handsome result for you. That is I raised to power 4 is equal to 1.
I raised to power 4 is equal to 1. That is your uh, for all positive value of 1. So you can say general value I raised to power 4n equal to 1. So I raised to power 4n is equal to 1. This is your general formula. So in this chapter, this one is the beginning part. First, we should study about I. What is I? Your I is iota. Our value of I is what? Root of -1. And I square is -1. I cube is what? Minus n. I raised to power 4 is 1. Clear? So first of all, we should study or we should concern about I. I stand for iota. Right? Then after that, we discuss in complex number. I think this concept is clear. Concept of I. After this one part is clear, then the topic is our complex number. So complex number is what? That is a simple mixture of real number and imaginary number. Imaginary number, a number which has I. And complex number को z से represent करते हैं. We can write z is equal to x plus iy. We can write z is equal to x plus iy. What is the x? X is your real part. What is y? Your imaginary part. You can say if real part of complex number Ra of z, then you can say x. Imaginary part of complex number, you can say coefficient of I, that is y. So what is complex number? Simple complex number is the mixture of real number and imaginary number. This number known as the complex number. अगर ऐसे देखा जाए इन वर्ल्ड इस ब्रह्मांड में ईच नंबर सारे नंबर्स को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ. Each number we can convert it into your complex number. For example, suppose if here is 2, here is 2, you can write 2 is what? You can write 2 plus 0 I. ठीक है ना? इसको हम लिख सकते हैं 2 plus 0 I. रियल पार्ट कितना है? 2 इसका. और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर इज 0. कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज 0. सपोज नंबर लिखा है मेरे पास -i. बोला गया इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म पे लिखो एंड दिस इज व्हाट दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इन सम बुक दिस इज आल्सो नोन एज a plus ib form. A plus ib form or complex number. So -1 we can write -1 is what? -1 plus 0. If you write real part of this number, answer is 0. Imaginary part of this number, coefficient of I, that is -1. So we can say this is the some concept or basic concept about your complex number. ये मैं कुछ basic concept discuss कर रहा था complex number के बारे में, right? This number is important. This is what? This is your iota. ये number जरूर complex number में mixed form पे होगा. मतलब multiplication होगा, addition होगा, subtraction होगा, division होगा and so on. ठीक है ना? अभी मैं इस नंबर पे डिस्कस करता हूँ. I stand for iota और इसकी वैल्यूज कुछ लिखी थी मैंने अभी. I square है, I cube है and so on. Right? Now we are doing some basic concept regarding in I. यानी I के basic concept के ऊपर बोलेगा simplify और you can represent this one question in your standard form. Standard form मतलब a plus ib form. That is your standard form. Right? Suppose that we have written here simplify mode में करा है solve 1 plus I square plus I cube. We have to solve 1 plus I square plus I cube. You can write 1 is 1, I is I. Here I square is what? Your I square is what? I square is -1. Your I square is what? I square is your -1. And I cube is what? -I. So -I plus I cancel out, -1 cancel out, answer will be 0.
सो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 0। उससे बोला सिंप्लीफाई ऑन दिस वन नंबर। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं सॉल्व सॉल्व 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई and express this one answer and express this one answer in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो इसको a प्लस आई बी फॉर्म या इस तरह से x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेट दिस नंबर इक्वल टू z। तो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसको मैं रेशनलाइज कर लूंगा। दिस वन क्या लिखा है 2 माइनस आई, तो रेशनलाइज यानी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई 2 प्लस आई का मल्टीप्लाई एंड 2 प्लस आई का डिवाइड कर सकते हैं। नाउ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई 1, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, 1 इंटू आई दैट इज आई इंटू 2 दैट इज 2i, I into I that is I square whole divided by here is a minus b into a plus b, a minus b into a plus b that is a square minus b square, I का square हो जाएगा I square, a plus b into a minus b, right। 2 की जगह 2 लिखा, 2i plus I मिलके हो गया that is 3i and I square is what, I square is minus 1। अभी बताया था मैंने I square is minus 1 अपॉन 4, आई स्क्वायर कितना माइनस 1 तो जाएगा प्लस 1 नीचे, 2 से 1 आया 1, ये हो गया 1 प्लस 3i अपॉन 5। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखूंगा 1 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 आई। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन था। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाता है तो उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे रेशनलाइज करना है, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है और आई डिनोमिनेटर से रिमूव कर लेना है। तो इस फॉर्म पे लिख लिया मैंने। रियल पार्ट क्या है इसका, दैट इज 1 अपॉन 5, इसका दैट इज व्हाट, दैट इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब आई का कोफिशिएंट, रियल पार्ट मतलब जहां पर आई ना हो। क्लियर। तो ये मैंने सिंपल एक आई वाली प्रॉब्लम आपसे सिंप्लीफाई की, हाउ टू सॉल्व इमेजिनरी प्रॉब्लम्स इन आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और एक दो क्वेश्चन और करते हैं आई बेस्ड प्रॉब्लम जिसमें आई लिखा होगा आपके साथ, तो मैं देखता हूँ, राइट। अब बोला आपसे सिंप्लीफाई z इक्वल टू 1 माइनस आई रेज टू पावर 4। All this one मतलब that number you should convert into the standard form, simplify करके। तो पावर 4 को कैसे सॉल्व करें, that is 1 minus I square raised to whole square। पावर 4 को ब्रेक कर लिया 2 into 2 करके, I think there is no problem, right। now अब a minus b whole square ओपन कर लेते हैं, ठीक, that is a minus b का whole square। तो क्या होगा a square प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये वाला स्क्वायर लगा था एस एस लगा था। मैंने भी इस वाले को ओपन किया। नाउ 1 is 1, आई स्क्वायर क्या है माइनस 1 माइनस 2i स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, यू विल गेट माइनस 2i का स्क्वायर क्या हुआ, दैट इज 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना माइनस 1 इंटू 4, आंसर आया माइनस 4। तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट ए वे। तो कैसे रिप्रेजेंट करें, माइनस 4 को लिखेंगे माइनस 4 प्लस 0i, दिस इज योर प्रॉपर आंसर। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट माइनस 4। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ i दैट इज योर 0। दिस इज अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व करने को बोला था, कुछ इस तरह से इसको मैंने सिंप्लीफाई बोर्ड में सॉल्व किया, राइट। So this part is also clear. This is what? So this is हम लोग कर क्या रहे हैं? We are doing some I वाले क्वेश्चन, I जिसमें I लिखा हो, न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो या उसकी पावर्स में हो। So these number how can express in our a plus ib form, or you can say that is what, that is your standard form of your complex number, उनको बोलते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़े प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी some more question is what, to convert this number, to convert these number into the standard form, क्या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। our question is what, question is 1 upon 3 plus I upon 7, 1 upon 3 plus I upon 7
+4। तो क्या करते हैं, रियल को रियल से ऐसे ऐड कर लें एक साथ, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 4 + i/7। इसको सॉल्व कर लें, 3 4 जा 12 1 13, 13/3 + 1/7i। तो इस नंबर को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। दैट इज योर फाइनल आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 13/3। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? दैट इज 1/7। क्लियर? इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के आई वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर सिंप्लीफिकेशन। नाउ अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा को डिस्कस कर लेते हैं। और हेडिंग इज व्हाट? और हेडिंग इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। So algebra of complex number. So algebra of complex number is what? First thing, जब algebra की बात होगी, 2 or 4 things are decided: how to add, how to subtract, how to multiply, और how to divide. तो कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो पहले हम एडिशन का देख लेते हैं। हाउ टू ऐड द कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z1 लिखा है मेरे पास, x1 + iy1 is your first complex number, and z2 is your second complex number, that is x2 + iy2। ठीक। अब मुझे बोला गया फाइंड z1 + z2, फर्स्ट पार्ट। तो z क्या करें, रियल को रियल से ऐड कर लें, x1 + x2, और इस इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड कर लें। i कॉमन ले लिया, दैट इज व्हाट, y1 + y2। ये आ गया आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज अगर मुझे बोला जाए सब्ट्रैक्शन कर दें, इसमें इसको माइनस कर लें, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रियल को रियल से माइनस कर दें, x1 - x2, इसमें से i कॉमन ले लेंगे, एंड y1 - y2। दिस इज सब्ट्रैक्शन। ये आपका एडिशन हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सपोज अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन कहता है, z1 × z2, तो मैंने भी एक क्वेश्चन में करके दिखाया था, हाउ टू मल्टीप्लाई x1 + iy1 एंड x2 + iy2। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स को s से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को x2 से मल्टीप्लाई कर लिया, x1 x2, फिर x1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो i x1 y2, फिर i y1 को इससे किया i y1 x2, और i × i क्या हो जाएगा, i² यानी -1, ये आ जाएगा -y1 y2। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक। अब डिवीजन की बात करता है, तो z1/z2, उसकी ट्रिक बता रखी है मैंने, x1 + iy1 डिवाइडेड बाई x2 + i/2। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को रेशनलाइज कर लेंगे, अगर प्लस है तो x2 - i/2 का मल्टीप्लाई, और x2 - i/2 का डिवाइड कर लेंगे। So these are the process we are going to add, subtract, multiply and divide। और इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे। So these are what? These are the algebra of complex number। So today what we have studied? First हमने डिस्कस किया i के बारे में। What is i? i था आपका आयोटा। i की वैल्यू कितनी है, √(-1)। i² कितना है, -1। i³ कितना है, -i। i⁴ कितना है, 1। यानी i की पावर 4 1 है। अब जैसे मैं पावर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूं, मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁻13, तो आप क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करके चेक कर ले व्हाट इज रिमाइंडर। तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज व्हाट, 1। क्योंकि i की पावर 12 तक तो 1 हो गया होगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो आपने कहा i की पावर 13 इज इक्वल टू i की पावर 1। योर आंसर इज i। सपोज दैट अगर मेरा क्वेश्चन होता i⁻14, फिर मैं क्या करता, फिर से 4 से डिवाइड करूंगा। जब पावर मेरी 4 से बड़ी होगी तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, राइट। पावर 4 से बड़ी, क्यों, बिकॉज i⁴ 1 होता है। तो 4 and 14, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज व्हाट, 2। तो जो रिमाइंडर बचा, तो i की पावर 14 क्या हुआ, i²। एंड व्हाट इज i²? बताया मैंने, -1। तो i की पावर 14 कितना हो गया, -1। तो इस तरह से हम अपनी जो पावर्स वाली प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है, डिवीजन समझ में आ रहा है। डिवीजन में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं,
बिकॉज वी हैव टू रिमूव एट डिनोमिनेटर साइन माइनस, यानी डिनोमिनेटर में अगर आई है तो उसको मुझे रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है? उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। So these are the easiest process how to solve complex number addition, subtraction and division. So these are what? These are the simple and basic idea of your complex number जिसका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी बात करें, वी आर डिस्कसिंग टुडे एक्सरसाइज 5.1, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे अभी आपसे, एक्सरसाइज 5.1। उसमें आपको ये सारी चीजें आई का कन्वर्जन बताया गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो, पावर कैसे ओपन करना है, हाउ टू एक्सप्रेस योर कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू योर आयोटा फॉर्म, है ना। ये सारी चीजें आपको इसमें डिस्कसिंग करनी मैं बता रहा था। दिस इज योर 5.1। ये जो चैप्टर है इसमें एक छोटा सा पार्ट ऐड भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। तो छोटा सा पार्ट इसमें क्वाड्रेटिक का भी इसमें ऐड है, क्वाड्रेटिक का बहुत छोटा सा पार्ट है। तो अगर इसमें मैं बात करूं एनसीईआरटी की क्वाड्रेटिक इसी इक्वेशन में, आई थिंक 5 to 6 मिनट का ही कंसर्न है। सपोज दैट क्वाड्रेटिक का उसने पार्ट दिया कि सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? 2 को शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया -2, 2 को शिफ्ट किया, फिर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा रूट ऑफ प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 को लिखेंगे -1 इंटू 2 प्लस माइनस एस सच, रूट ऑफ -1 क्या हो गया? आई, और बचा √2। your answer is what? Answer is plus minus I root 2. The answer is plus minus I root 2. क्लियर है ये चीज? यार ये अच्छे से समझ में। अब इसके साथ कोई नंबर एक्स का डाल दें, ये तो टाइप 1 हो गया आपका। टाइप 2 क्या रहेगा? ऐसे करके पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, कहेगा सॉल्व फॉर एक्स। आपको पता है इसके फैक्टर नहीं बन रहा है, देन यूज द डी फॉर्म। क्या डी फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2। माइनस बी कितना है? 1 प्लस माइनस बी कितना है? 1 -4, ए है 1, सी है 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। क्योंकि ए बी सी की वैल्यू मैंने 1 ली है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1, -1, तो 1 से 4 गया -3, रूट ऑफ -3 पे क्या लिखेंगे? आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर आ गया इसका। अगर पॉजिटिव नेगेटिव बोलेगा, पहला आंसर होगा -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 एंड सेकेंड वन आंसर इज -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। So these two such type of question in your quadratic equation whenever used in your complex number. ये complex number में अगर हम कोई quadratic का use करेंगे तो किस तरह से उसको simplify mode में solve करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने complex number का आपको आइडिया दिया, आई का आइडिया डिस्कस किया आपसे, एंड सम कुछ इस तरह क्वेश्चंस डिस्कसिंग इन व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन योर complex number.